Good evening, everyone. I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. Today we are going to discuss the chapter Electromagnetism. This chapter is actually for class 10, right? ICSC board. And I'm just following the Serena publication for the explanation part. So I will be discussing the major portion over here, right? You can just match that what are the topics which are under which are actually in your syllabus, right? So the first section we are going to deal with is magnetic effect of electric current. So the first part, there's an experiment, Austin's experiment on the magnetic effect of electric current. So the point is that, so this is a physicist, right? He was just uh, performing one experiment, right? So Hans Oster in 1820, in his experiment, observed that when an electric current is passed through a conducting wire, a magnetic field is produced around it. The presence of magnetic field at any point around the current carrying wire can be detected with the help of compass needle. Now, there is a certain point I would like to just discuss over here, that what he observed when an electric current is passed through a conducting wire. That means there must be some electric current, right? Then what he observed? He observed that there is a magnetic field which produces around it. That means wire के चारों तरफ क्या एक magnetic field डेवलप होता है, ये उसने देखा. अब भाई वो देखा इन द सेंस उन्होंने डिटेक्ट किया. अब हाउ ही डिटेक्टेड? विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल. In the right side, you are just getting a diagram of the experiment. I will demonstrate it one by one, right? That how it happens actually. In absence of any magnetic field, the needle of a compass can rest in any direction. But in the presence of magnetic field, the needle of a compass rests only the direction of a magnetic field. That is Earth's magnetic field alone. The needle rests only along the north-south direction. So this is the basic fundamental point regarding the magnetic needle. So अब basic यहाँ पे ये आप idea लगा सकते हो that कि I have just taken one circuit और उसमें फिलहाल कोई current flow नहीं कर रहा है, and I just placed one magnetic needle just beside that one, right? So उस magnetic needle में और compass needle में actually कोई भी deflection नहीं दिखा, but whenever we just flow the current, then there is a deflection. So I'm not going to just read it, I'm just going to describe this diagram. ये पहला जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे की क्या है? ओपन है. व्हाट अबाउट द की? आप देख लो, ये जो सेक्शन दिख रहा है, दिस इज की मतलब यहाँ पर स्विच लगा हुआ है. एंड दिस इज रियोस्टैट. रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज बैटरी, राइट? इसको हम लोग सेल बोलेंगे एक्चुअली में, क्योंकि ये सिंगल सेल है. कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, बट यहाँ पे बैटरी लिखा है, सो बोल ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, अगर ओवरऑल इन जनरल बात की जाए तो, राइट? सो द पॉइंट इज ए बी रिप्रेजेंट्स अ वायर. भाई वायर तो पूरा ही है, बट पॉइंट ये है कि ए बी हमारा एक स्टडी सेक्शन के लिए, मतलब स्टडी पर्पस के लिए ए बी सेक्शन को हम लोग स्टैंडर्ड मान के स्टडी कर रहे हैं. नाउ जब हम लोग यहाँ पे की ओपन रखे हैं, तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है, दैट इज कंपास नीडल का डायरेक्शन आप देख लो, कुछ ऐसा नॉर्थ साउथ है, राइट? लाइक दिस. बट जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, ये डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है, राइट? दैट मीन्स ये नॉर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया है, रोटेट कर गया है. रोटेशन वर्ड इज द परफेक्ट वन हियर. नाउ द थिंग इज, अगर हम लोग यहाँ पर अब देखो, बैटरी में बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा है. थर्ड डायग्राम में अगर हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है. सो फर्स्ट डायग्राम में क्या था हमारे पास? फर्स्ट डायग्राम में, इन द फर्स्ट डायग्राम हमारा जो की है वो ऑफ था, मतलब भाई करंट पास नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक नीडल में, कंपास नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था. इसका मतलब भाई वायर में कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. बट व्हेन वी जस्ट कनेक्ट द की, तो हमारे पास आप देखो ये बैटरी है, इसकी वजह से क्या है, करंट सेटअप हो गया सर्किट में. ए बी आप देख लो, ए से बी के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे हमारा जो नीडल है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी. बट नाउ द पॉइंट इज that when we just interchange the terminal of the battery or cell, what happens? The deflection, that is the rotation, changes. पहले क्या था? एंटी क्लॉकवाइज, बाद में क्या हो गया? क्लॉकवाइज. So this is the thing which you have to just keep in mind, right? ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया. नेक्स्ट इज कंपास नीडल प्लेस्ड अबव द वायर, और यहाँ पे क्या था भाई? बिलो द वायर, लाइक दिस. सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि इससे पहले जो भी हमारा जो डिटेल्स था यहाँ पर, मतलब जो कंपास नीडल था वो क्या था? वो बिलो द वायर प्लेस किया गया था, राइट? सो इन द नेक्स्ट पोर्शन, व्हाट इज द थिंग विच वी हैव टू फोकस? अगेन यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन है, बट ये अबव रखा गया है. इन द लास्ट केस देयर इज आल्सो अ डिफ्लेक्शन,
राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज है। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको बस इतना ही समझना है, पहला पॉइंट, कि दैट व्हेनेवर देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ करंट देन देयर इज अ डिफ्लेक्शन। कभी भी करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इफ वी जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डिफ्लेक्शन विल बी जस्ट रोटेटेड, मतलब रिवर्स हो जाएगा, एक्चुअली नॉट रोटेट, वी कैन से दैट रिवर्स हो जाएगा, राइट। ए बी की तरफ, ए से बी की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड था, सॉरी करंट था, देन रोटेशन जो है मैग्नेटिक नीडल का वो एंटी क्लॉकवाइज था। एंड जब ये बी से ए की तरफ हो गया डायरेक्शन करंट का, तो ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज हो गया, बस यही बात है यहाँ पे। और मेन और एक पॉइंट क्या है, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, व्हेन की इज ओपन, तो मैग्नेटिक फील्ड में मींस नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है दैट व्हेनेवर देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर अराउंड इट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो अच्छी बात है भाई, यहाँ पे पता चल गया हम लोगों को। तो यहाँ जो भी आप ये सब पॉइंट्स देख रहे हो, यू हैव टू जस्ट रीड इट, सिर्फ इसको अच्छे से एकदम रीड करो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस वन मोर थिंग, राइट। हियर देयर इज अ नेक्स्ट पॉइंट, ये इन्फेरेंस के बारे में आप स्टडी करोगे एक बार खुद से, राइट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। भाई स्ट्रेट वायर में हमने करंट फ्लो कराया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, हम लोगों ने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये समझा कि जब कभी भी वायर में करंट फ्लो होगा देन देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बट नाउ भाई अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इफ वायर इज स्ट्रेट, देन व्हाट टाइप एंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक, ये क्या पैटर्न बनाएगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, राइट। So when a current is passed through a conducting wire, a magnetic field is produced. ये तो एकदम सामान्य बात है भाई, ऑस्टर ने प्रूव किया। Around it, at a point, the direction of a magnetic field will be along the tangent drawn on the magnetic field lines at a point. मतलब जो भी हम लोग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं उसका टेंजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे, राइट। सो इस चीज को समझाने के लिए आई हैव टू जस्ट ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम, और इसमें मेरे को आपको एक चीज बताना पड़ेगा दैट व्हाट इज टेंजेंट एंड हाउ टू ड्रॉ इट। मैटर इज दैट फर्स्ट आपको ये बताना होगा दैट व्हाट इज टेंजेंट, दूसरा आपको ये बताना पड़ेगा दैट हाउ टू ड्रॉ इट। सो आई विल जस्ट मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस वन, दैट हाउ वी कैन चेक द डायरेक्शन। नाउ वी विल जस्ट गो टू दिस particular experiment, right? So you can just have a look that there is a cardboard, right? एक rectangular cardboard है, इसके बीच में एक छोटा सा होल किया गया है, and from that hole a straight wire is being passed, एक straight wire को पास कर दिया गया, थोड़ा थिक रखा गया है ये वायर को। नेक्स्ट इज दैट ये जो वायर आपने देखा है यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर दिया गया किससे, एक बैटरी से। एग्जैक्टली दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, जहाँ पे एक से ज्यादा सेल होगा बैटरी, and this is a variable resistance जिसको रियोस्टैट बोलते हैं, and there is a key which has been just fixed here. Ammeter is connected in series to just find out the current है या नहीं सर्किट में। so जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, what we observe some circular lines over here, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर बनता है, राइट। अगर आप इसमें गूगल यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कुछ वीडियोस जरूर मिल जाएंगे दैट हाउ this forms, right. Apart from that, I will also make a separate video for some sort experiment so that all of you will be very familiar with all the things, right. So कभी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बनेगा, राइट। एंड हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है जिसके हेल्प से हम लोग इसका रोटेशन का डायरेक्शन पता करते हैं। सो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ओवरऑल मेन पॉइंट को ही डिस्कस करने वाले हैं, रेस्ट आप एक बार बुक को रीड आउट करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर माय डियर दैट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, राइट। ऑल द कंटेंट, ऑल मींस ऑल द टीचर्स आर जस्ट फॉर योर सपोर्ट। सो ये आप देख रहे हो, ये राइट हैंड थंब रूल है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब इट। अब आप देखो यहाँ पे करना क्या है कि ये एक वायर है, वायर कौन सा है, एक्स वाई इज द वायर। इसमें करंट किधर जा रही है भाई, एक्स से वाई की तरफ, किधर जा रही है, एक्स से वाई की तरफ। सो अब हम लोग को इसको अपने हैंड में इस तरह से होल्ड करना है सच दैट हमारा जो थंब है, दिस थंब शुड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग ही हमारा थंब होना चाहिए। So, जब हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं तो आप देखो ये जो बाकी 4 फिंगर्स है वो क्या कर्ल फॉर्म कर रहा है, कर्ल, राइट। सो बाकी फिंगर्स का जो कर्ल का डायरेक्शन होगा like this, so that will actually represents a direction of magnetic field। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो ब्लू,
dotted line, right? This represents actually the direction of magnetic field. I hope that आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा. So आज हम लोगों ने यहाँ पे बस थोड़ा सा ही डिस्कस करा है, right? I will just upload the video in a regular basis. So this is the Oersted experiment. इससे हम लोगों को क्या पता चला? We got that whenever there is a flow of current through a wire, then there is the existence of magnetic field around it. Next, हमारा important section क्या है? That whenever we just pass a current through a straight carrying conductor, then there will be a magnetic field which is being produced, which is in a circular loop. Circular loop या circular सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल. सो आई एम जस्ट मेकिंग अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट कि आप किस तरीके से टॉपिक को कनेक्ट करोगे. सबसे पहले क्या किया गया कि ऑस्टेड ने बताया कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है. बहुत अच्छी बात है. उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि भाई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो भाई उसका जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगा. अब बात ये कि जब सर्कुलर बनेगा तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है. सो अब उसको पता करने के लिए क्या था? राइट हैंड थंब रूल. जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दिस थ्री टॉपिक, राइट? इसको आप लोग थोड़ा कनेक्ट कर लो एक बार. दैट मीन्स यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. एक पार्ट हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे. यहाँ आप देखो जो कि हमारा राइट हैंड थंब रूल उसका स्टेटमेंट है, राइट? ये बोला गया दैट if you hold a current carrying conductor in a right hand such that the thumb points in the direction of a flowing flow of current, then the finger encircle the wire in the direction of a magnetic field lines. यही बात बताया गया है यहाँ पे, ठीक है? सो आज के सेशन में मीन्स आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सर्कुलर लूप. बहुत ही सिंपल है. ये डायग्राम आप देखोगे, इसको समझा देने से ही हो गया. And then this is the important one for clockwise and anti-clockwise. We are going to discuss this all. So I hope that आपको अच्छा सेशन सही लगा होगा. And then just keep studying, my dear students. If you have any kind of doubt, then definitely you can just drop a comment on a comment box, right? So thank you, my dear students, and stay tuned with the channel.